Hello everyone. In previous session we seen estivation and placentation with diagram, right? Types of estivation and types of placentation हमने डिटेल में देखा. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. देन हमने फ्रूट के बारे में सब बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी. अब हम बात करते हैं सीड के बारे में. सीड के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स के ओवरव्यू ही दूंगी क्योंकि ये रिड्यूस टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में होनी चाहिए. दैट इज़ वाई आई एक्सप्लेन यू. सो द आफ्टर ओव्यूलेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू सीड. कि ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होते हैं. सीड मेड अप ऑफ सीड कॉट एन embryo made up of radical embryonal egg cell, right, 1 or 2 cotyledons. So ये हो गया सीड के बारे में. There are two types of seed, dicotyledon seed and monocotyledon seeds. So हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं. Dicotyledon seed have two dicotyledon which store reserve food material, right. The outermost covering of seed that is called seed coat that have two layer, outer layer that is called testa and inner layer that is called tegmen. Then we talk about hilum that is a scare on the seed coat की एक pore like structure होता है seed coat के ऊपर, that is developing seed were attached to the fruit, and above hilum is a small pore that is called micropyle. Okay, किसी भी सीड में आप माइक्रोपिल देख सकते हो. विदिन द सीड कॉट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियल एक्सिस एंड टू cotyledons. The cotyledon often fleshy and full of reserve food material. At the two end of the embryal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds such as castor में एंडोस्पर्म फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. मीन्स वॉट कि एंडोस्पर्म जो बनता है वो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, राइट. इट इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू. एंडोस्पर्म क्या है? जिसमें फूड स्टोर होता है. इन प्लांट्स सच एज इन बीन्स, ग्राम्स एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड बिकॉज वो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट यूज हो जाता है, एंड सच सीड नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ओके, सो dicotyledon seed also known as a non-endospermic seed. Next, monocotyledon seed. You can see this diagram. In monocotyledon seed, outer layer that is called seed coat or we can say fruit wall, they divide in two parts. One is endosperm and second small part that is called embryo. In endosperm, outer layer, congested layer that is called aleurone layer, which have protein molecule which is store protein, and inner part of endosperm that have starch particle which is used during embryo development. बराबर समझ में आया? ओके. उसके बाद जो छोटा सा पोर्शन है एम्ब्रियो दैट हैव वन scutellum and scutellum on one side of scutellum that is plumule, and plumule covered by coleoptile, and another side of scutellum that is radicle, and radicle covered by protected by coleorhiza, right. So this is the basic information you already study in प्रीवियस स्टैंडर्ड. लो स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा ही होगा, राइट. सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडन सीड. ये जो मोनोकोटिलीडन सीड है उसमें एज ए एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कॉर्न, राइट, शुगर केन. ओके. और नॉर्मली सब सीड एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं. ओके. All seeds, monocotyledon seed are endospermic, but some as in orchids that is non-endospermic. ये आपको याद रखना है कि ऑर्चिड में जो सीड है वो मोनोकोटिलीडन सीड है, बट दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ओके. उसके बाद
सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, मीन्स के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, फ्लोरल कैरेक्टर समझने के लिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर समझने के लिए हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विथ इट्स habit, vegetative character, that is a roots, stem and leaves, and then floral characters भी हमको पता होने चाहिए, राइट। सो सम साइन यहाँ सिंबल यहाँ दिए है फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल BR that stand for bracts, K stand for calyx, C stand for corolla, P stand for perianth, A stand for androecium, G stand for gynoecium, G for superior ovary, ये G है that is called inferior ovary, this is for male, this is for female, this is for bisexual plant, this is for actinomorphic, and this is for zygomorphic nature of flower. Clear? So these all symbol you have to remember while you are studying family of plant, right? कि प्लांट की फैमिली पढ़ते वक्त आपको ये सिंबल अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे से फ्लोरल कैरेक्टर और फ्लोरल डायग्राम याद रहेगा। अगर फ्यूज़न होगा तो उसको मीन्स के अगर कोई किसी के साथ, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जो कोरोला होता है वो एंड्रोशियम के साथ बाइंड होता है, सो उसको शो करने के लिए अ लाइन ड्रॉन अबाउट द सिंबल ऑफ फ्लोरल पार्ट्स की आपको सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखे सी दैट इज कोरोला एंड ए, राइट। C2 है, A2 है, तो उसके बीच में अगर हम कनेक्शन दिखाएंगे, एडहेशन दिखाएंगे, तो ऐसे दिखाना है, ओके। और ये जो फ्लोरल डायग्राम है उसके ड्रॉ करने की रिस्पेक्टिव मैनर रूल्स भी है कि फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ कैलिक्स, then corolla, then androecium, and then gynoecium drawn in successive whole, right? Means के calyx being outermost and gynoecium being inner in the center. ओके, सो यहाँ आपको ब्रासिकेसी मीन्स के ब्रासिका मस्टर का फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ किया है। यू कैन सी, right, this is actinomorphic symbol, then bisexual, then K2 plus 2, K means calyx, 4 है, 1 2 3 and 4 पैरेट कलर के, राइट। C भी 4 है, 1 2 3 4, बट ये एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं है। C यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, दैट इज़ वाई यहाँ सिर्फ C4 लिखा है। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होते तो ऐसे कौंस में मीन्स के ब्रैकेट में लिखते, राइट। सो ऐसे ब्रैकेट में लिखा है दैट शोज कनेक्शन विथ ईच अदर, एंड ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखा है दैट शोज दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। A2 plus 4 वो भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ये जो एंड्रोशियम है वो, ओके। और उसके बाद जिनोशियम 2, बट वो एक दूसरे के साथ बाइंड है। सो ऐसे फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने हैं आपको। अब हमको इम्पोर्टेंट फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया है। फर्स्ट यू हैव गिव फैबेसी, बट फैबेसी दैट इज इन नॉट इन योर सिलेबस, that is why we left it and we start Solanaceae family. Solanaceae family के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लिया था, राइट। वी विल स्टार्ट Solanaceae family. Solanaceae family के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही है,
क्या पता है कि सोलेनेसी इट इज़ अ लार्ज फैमिली दैट इज कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली, राइट. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन. कि कहाँ उसका हैबिटेट है वो यहाँ लिखा है. देन सोलेनेसी फैमिली हैव टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, राइट. Vegetative character and floral character. So first of all we have to see vegetative character. In vegetative character we have to talk about root, stem and leaf. वेजिटेटिव मीन्स कि ये तीनों के बारे में आपको बात करनी होगी. देन फ्लोरल कैरेक्टर में हमको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जिनोशियम, फ्रूट, सीड सब के बारे में, लीफ का एक्सटिवेशन सब के बारे में आपको डिटेल में बात करनी होगी, राइट. सो प्लांट मोस्टली हर्ब्स, shrub and small tree. Stem that is herbaceous, rarely woody, right. Stem कैसा है? herbaceous है. herbaceous means what? कि हर्ब फॉर्म में है. रेयरली वुडी मीन्स के वो थोड़ा लो वुड क्रिएट करेगा, मीन्स के थोड़ा सॉफ्ट होगा, राइट, हार्ड नहीं होगा. एरियल, देन इरेक्ट. एरियल मीन्स हवा में होगा, इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट होगा, सिलेंड्रिकल मीन्स के सिलेंडर फॉर्म में होगा, ब्रांचेड, राइट, सॉलिड और होलो. हैरी और ग्लैब्रस. हैरी और ग्लैब्रस मीन्स व्हाट? कि स्टेम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे और अगर नहीं होंगे दैट इज कॉल्ड ग्लैब्रस मीन्स के स्मूथ उसकी सरफेस होगी. अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम दैट यू ऑलरेडी स्टडी इन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइट, इन दिस चैप्टर. देन व्हाट अबाउट लीव्स? लीव्स दैट इज अल्टरनेट. हमने लीफ का जो एस्टिवेशन था वो हमने देखा था फाइलोटैक्सी. सिंपल, राइट, सिंपल होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड, बट यहाँ लीफ सिंपल है. रेडली पिनेटली कंपाउंड, कि कभी कभी पिनेटली कंपाउंड लीफ हमको मिलता है. पिनेटली कंपाउंड लीफ मीन्स व्हाट? पिनेट शेप का होगा, राइट. देन एक्सटिपुलेट. एक्सटिपुलेट मीन्स व्हाट? कि उनमें जो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर में आपने देखा होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखा है कभी? लीफ के जो पार्ट्स होते हैं ना वहाँ, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, राइट. तो विदाउट स्टिप्यूल यहाँ आप लिख सकते हो एक्सटिप्यूल मीन्स व्हाट? विदाउट stipules, that is called exstipules. and venation reticulate, कि venation होता है बट कैसा होता है? reticulate होता है. clear? so these all about vegetative character of Solanaceae family. understood? उसके बाद floral character आएंगे. inflorescence that is solitary, axillary or cmos in the solanum. cmos floral इन्फ्लोरेसेंस में आपको पता है कि जो एक्सियल पार्ट होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्लांट ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है, राइट, कम हो जाता है. देन फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ऐसा है, राइट, बाइसेक्सुअल. कैलिक्स में सेपल 5 यूनाइटेड. परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन. परसिस्टेंट मीन्स व्हाट? कि फ्रूट के साथ अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड पर्टिसन्स. आपने चिली देखा होगा, ब्रिंजल देखा होगा, उसके ऊपर जो अटैच होता है दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ कैलिक्स और सेपल्स. कोरोला, पेटल्स 5 यूनाइटेड, वेलवेट एस्टिवेशन. एंड्रोशियम, स्टेमन 5. एपिपेटलस. एपिपेटलस मीन्स व्हाट? स्टेमन
bind or we can say fuse with petals, that is called एपिपेटलस। जिनोशियम बाइकार्पेलरी 2 है। सिनकार्पस मीन्स के वो एक दूसरे के साथ अटैच है, अटैच। सिनकार्पस मीन्स व्हाट? अटैच, राइट। ओवरी सुपीरियर, बाइलोक्यूलर, प्लेसेंटा स्वोलन विथ मैनी ओव्यूल्स। फ्रूट बेरी और कैप्सूल, हार्ड फ्रूट होगा। देन सीड मैनी, एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स के यहाँ एंडोस्पर्मिक मीन्स आप लिख सकते हो मोनोकोटिलिडन सीड, राइट। उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला है एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर, देन कैलिक्स और सेपल्स बाइंड विथ ईच अदर, 5 petals bind with each other and bind with also androecium, then gynoecium to bind with each other. Then most important economic importance की हम बात करें तो many plants belonging to this family source of food, जिसमें टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो आएगा। देन स्पाइस, चिली, देन मेडिसिन, बेलाडोना एंड अश्वगंधा। देन फ्यूमिगेटरी मीन्स के फ्यूम निकलती है जिसमें से, दैट इज कॉल्ड टोबैको। एंड देन ornamental plant, that is petunia, right? So for 5 important source of food, then spicy, then medicine, then fumigatory and then ornamentals, right? सो ये हो गया सोलेनेसी फैमिली के बारे में, राइट। उसके बाद यहाँ हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। फ्लोरल डायग्राम को देखने के लिए, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम ये है, राइट। फ्लोरल डायग्राम देखने के लिए आपके पास फ्लोरल फॉर्मूला होनी चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला में देखो आप, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। देन सीधा हमको कैलिक्स के बारे में देखना है। कैलिक्स आर यूनाइटेड विथ ईच अदर, राइट। सो यू कैन ड्रॉ कैलिक्स दिस वे, राइट। देन उसके बाद ऐसे, देन ऐसे, राइट। अब यहाँ सीधा बाइंडिंग आपको दिखाना है और ऐसे ड्रॉ करना है, ओके, राइट। तो एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए। देन उसके बाद अंदर की तरफ कोरोला ड्रॉ करना है विथ बाइंड विथ ईच अदर, बाइंड हो ऐसे, आपको ऐसे बाइंड होना है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ ये जो है वहाँ ऐसा आना चाहिए, राइट। ये जो है वहाँ ऐसा आना चाहिए, राइट, ऐसा, तो ही अच्छे से सूट होगा। और उसके बाद अंदर की तरफ क्या है, जिनोशियम, जो कितने हैं, 2 है और बहुत सारे ओव्यूल यहाँ है, राइट। अब हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम किसके साथ बाइंड है, कोरोला के साथ। तो यहाँ एंड्रोशियम ड्रॉ करने हैं, यहाँ इजीली 5 ड्रॉ हो जाएंगे, ओके। सो ऐसा फ्लोरल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। समझ में आया? यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो सी, दिस इज कैलिक्स, 5 united with each other. Then this is corolla united with each other. Then ये क्या है, जिनोशियम। एंड ये जो है वो
एंड्रोशियम है वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हुए। अगर एक दूसरे के साथ बाइंड होते, एक दूसरे के साथ बाइंड होते तो कैसा दिखाई देता, ऐसा। ये रेड कलर का अटैचमेंट ड्रॉ किया है ना मैंने, ऐसा दिखाई देता अगर एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ बाइंड होते तो। बट यहाँ एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं है। किसके साथ बाइंड है, कोरोला के साथ। क्लियर, समझ में आया? ओके, सो ये हमने आज देख लिया थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ली सीड के बारे में। देन हाउ टू ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम, हाउ टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ टू ड्रॉ अकॉर्डिंग टू फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम। मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाऊंगी कि आपको अगर फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ दिया है तो आप कैसे उसके बेसिस पे एक फ्लोरल फॉर्मूला बना सकते हो, और उससे उल्टा कि फ्लोरल फॉर्मूला अगर आपको दी हो तो फ्लोरल डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी। और इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बाकी है, दैट इज़ कॉल्ड लिलिएसी, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, थैंक यू।